بلیٹن میں سب سے پہلے آج کے بڑے مقابلے کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ خانیوال پی پی 256 ضمنی الیکشن میں دن بھر گہما گہمی عروج پر رہی۔ پولنگ اسٹیشنز کے باہر ورکرز کا رش رہا، جبکہ پارٹی ورکرز نعرے لگاتے رہے۔ ضمنی الیکشن میں صبح سویرے شدید دھند اور سردی کی وجہ سے ووٹرز کم دکھائی دیے، لیکن دن نکلنے کے بعد پولنگ سٹیشنز کے اندر اور باہر ووٹرز کی گہما گہمی رہی۔ پارٹی ورکرز بھی پولنگ سٹیشنز کے باہر خوب نعرے بازی کرتے رہے۔ مدینہ مسجد چوک پر پارٹی کارکنوں نے ایک دوسرے کے خلاف خوب نعرے بازی کی۔ خانیوال ضمنی الیکشن میں پولنگ سٹیشن نمبر 63 میں جعلی ووٹ کاسٹ ہونے کے بعد کچھ دیر کے لیے پولنگ کا عمل روک دیا گیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے ڈالا گیا ووٹ انتظامیہ نے کینسل کر دیا۔ کافی پوزیشن بہت اچھی ہے اور ماشاءاللہ شہر ہی کامیاب ہوگا۔ غلہ منڈی پولنگ سٹیشن کے باہر تحریک انصاف حکمران جماعت اور مسلم لیگ نون کے ورکرز آپس میں گتھم گتھا ہوئے، جس کے بعد پولیس نے صورتحال کو کنٹرول کر لیا۔ پولنگ کے بعد ریزلٹس آتے رہے۔ مسلم لیگ نون زیادہ ووٹ لینے کے بعد سبقت حاصل کرتی نظر آئی، جس کے بعد مسلم لیگ نون کے رہنما کے ڈیرے پر کارکنان جمع ہو گئے اور بھنگڑے ڈالتے دکھائی دیے۔ خانیوال کے حلقہ پی پی 206 میں ضمنی انتخابات سرد موسم میں ماحول کافی گرم رہا۔ تحریک انصاف کے امیدوار نورین نشاد ڈاہا نے اپنا ووٹ ضائع کر دیا۔ نون لیگی رہنما دا تارڑ نے پری پول دھاندلی کا الزام لگا دیا، جبکہ تحریک لبیک کے کارکن بھی پرجوش رہے۔ خانیوال کے حلقہ پی پی 206 میں آج سجا ضمنی الیکشن کا مارکا۔ شہریوں نے اپنی پسند کے امیدواروں کو سپورٹ کرنے کے لیے سرد موسم میں بھی ماحول گرما دیا۔ پولنگ کا عمل صبح 8 بجے شروع ہوا، جو ٹھنڈے موسم کی وجہ سے سست روی کا شکار رہا۔ دوپہر کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد نے پولنگ سٹیشنز کا رخ کیا۔ نون لیگی رہنما عطا اللہ تارڑ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جہاں پری پول دھاندلی کا الزام لگایا، وہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے کیے گئے انتظامات کی تعریف بھی کی۔ دیکھیے، ایک تو پہلی بات یہ کہ فارم 45 ہمارے پولنگ ایجنٹ ہمیں بھیجیں گے، ہم اپنا الگ نظام بنا رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جو فارم 45 آئیں گے، ان کا نظام یہ ہے کہ پہلے وہ واٹس ایپ پہ آتا ہے، پھر اس کو وہ اپلوڈ کرتے ہیں، اور جب فزیکلی آتا ہے تو اس کو رزلٹ میں ایڈ کرتے ہیں۔ ہمارے بیٹھے ہوں گے چیف پولنگ ایجنٹ بھی، ہمارے امیدوار بھی، مگر ہمارے پاس جو فارم 45 آئے گا ہم اپنا رزلٹ ساتھ ساتھ کمپائل کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ تحریک انصاف کی امیدوار نورین نشاد ڈاہا نے ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد سرعام نمائش کی، جس پر الیکشن کمیشن نے نوٹس لیتے ہوئے ووٹ کو ضائع قرار دے دیا اور انہیں نوٹس بھی جاری کر دیا۔ پولنگ کے دوران تحریک لبیک اور پیپلز پارٹی کے کارکنان بھی پرجوش رہے، انتخابی عمل میں بھی بھرپور شرکت کی۔ تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنان نے اپنے امیدواروں کو بھرپور انداز سے سپورٹ کیا۔ ماجد اسلم، روہی، خانیوال۔ ادھر خانیوال کے صوبائی حلقہ پی پی 206 کے ضمنی الیکشن میں سیاسی پارا ہائر رہا، کہیں تلخ کلامی ہوئی اور کہیں لڑائی جھگڑے ہوئے، کہیں پیپلز پارٹی کے جیالوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ خانیوال پی پی 206 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار میر واسق سرجیس حیدر کی جانب سے پولنگ سٹیشنز کے دورے پر بدنظمی سامنے آئی۔ نہیں، آپ کیسے لے جا؟ نہیں، آپ نہیں لے جا سکتے۔ لے کے جائیں اس کو۔ کیوں لے کے جائیں اس کو؟ لے کے جائیں۔ ڈی ایس پی خانیوال وسیم کی میر واسق اور بیٹے سے بدتمیزی، میر واسق کے گارڈ کو بھی گرفتار کیا گیا۔ میر واسق سمیت پیپلز پارٹی کے عہدیداران کی جانب سے شدید الفاظ میں مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ حکومتی جماعت گھبراہٹ میں اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ جیالوں کو دیکھ کر حکومتی جماعت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیں، ان کا 137 نمبر ووٹ ہے اور اس لسٹ میں درج ہے، تو انہوں نے کہا جی میں دیکھتی ہوں، میں کرتی ہوں، لیکن پھر میں نے کہا جی ان کو دیکھیں آپ اور ان کے خلاف کو کارروائی کریں، میری کمپلینٹ درج کریں، تو یہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ خانیوال کے پولنگ اسٹیشن نمبر 45 پر لیگی اور تحریک لبیک کے کارکنوں میں جھگڑا ہوا۔ کارکنوں نے ایک دوسرے کو نشانہ بنایا، ایک دوسرے کو تھپڑ مارے گئے اور مکوں کی بارش کی گئی۔ پی پی 206 میں ٹوٹل 183 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے تھے۔ مختلف پولنگ اسٹیشنز پر نوک جھونک کے واقعات بھی پیش آئے۔ کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ امجد ملک، روہی، خانیوال۔ ضمنی انتخابی مارکہ پی پی 206 پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار میر واسق سرجیس کے دن بھر پولنگ سٹیشنز کے دورے، ووٹرز کے ووٹ پہلے ہی کاسٹ ہونے پر الیکشن کمیشن کے فری اینڈ فیئر پولنگ کے دعوے کا پول کھول دیا۔ کہتے ہیں بیک وقت حکومتی ہتھ کنڈوں اور پی ایم ایل این کا مقابلہ کیا ہے۔ الیکشن ڈے پی پی 206 کے موقع پر امیدوار پیپلز پارٹی میر واسق سرجیس حیدر نے مختلف پولنگ اسٹیشنز کا دورہ کیا اور تحصیل آفس خانیوال میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ میر واسق کوٹ بیربل پہنچے، جہاں حکومتی جماعت کے پولنگ ایجنٹ کی جانب سے پی پی ووٹران کو ووٹ کاسٹ نہ کرنے دینے پر پریزائڈنگ آفیسر سے نوٹس کا مطالبہ کیا۔ 5-6 خواتین تھی جنہیں انہوں نے کہا کہ جن کا ووٹ ہی نہیں ہے اور وہ واپس جا رہی تھی، اگر میں نہ آتا تو یہ ہمارے سارے ووٹ یہاں ضائع ہو رہے تھے۔
तो उन्होंने कहा जी मैं देखती हूँ, मैं करती हूँ, लेकिन फिर मैं कहा जी इनको देखें आप और इनके खिलाफ को कार्रवाई करें, मेरी कंप्लेंट दर्ज करें। 167 10R पोलिंग स्टेशन पर पुलिस ने मीर वासिक को अंदर जाने से रोक दिया। मीर वासिक ने पुलिस के रवैये की भरपूर मजम्मत की। पीटीआई की एजेंट जो है हमारे वोटर्स को वोट कास्ट करने नहीं दे रही थी, वो कहती थी आपका वोट है ही नहीं, नंबर ही नहीं है। तो इत्तेफाक से मैं वहीं खड़ा था, मैंने देख लिया। मैंने जब उनसे पूछा तो उसका वोट नंबर भी 137 नंबर वोट था, उसी लिस्ट में था। मैंने फिर कंप्लेंट दर्ज करवाई। अभी ये मैं कंप्लेंट दर्ज करवा के बाहर निकला था तो उन्होंने की पुलिस को इत्तला की है, तो पुलिस के 3-4 डाले डीएसपी साहब की ज़ेर सदारत यहाँ जनाब पहुँचे हैं देर क़यादत, तो उन्होंने आगे बदतमीजी की है, मेरे गार्ड को उठा के ले गए, मेरे ड्राइवर को बट शट मारे हैं, मेरे बेटे के साथ बदतमीजी की है। मीर वासिक ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर वोटर के वोट पहले ही कास्ट होने पर इलेक्शन कमीशन के फ्री एंड फेयर पोलिंग के दावे पर कड़ी तनकीद की। हुकूमत परेशान है और वो अपने ओछे हथकंडों पे आई हुई है, हमें और हमारे वर्कर्स को और वोटर्स को परेशान कर रही है। मीर वासिक सरजीस हैदर का कहना था कि वो बेक वक्त हुकूमती हथकंडों और पीएमएलएन का मुकाबला कर रहे हैं, जबकि हुकूमती मशीनरी ने भी अपना काम दिखाया है। कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक के हमरा हसनैन औलख, रूही खानेवाल। उधर PP 206 में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल, वोट डालने में ख़वातीन भी पेश रही। सुबह सवेरे पहले चाय तैयार की, फिर अपनी पार्टी के लिए तारीफों के पुल बांध दिए। PP 206 खानेवाल में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल, ख़वातीन ने बढ़ चढ़ कर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डाला। ख़वातीन ने सुबह सवेरे पहले चाय तैयार की, फिर अपनी पार्टी की तारीफों के पुल बांध दिए। मुस्लिम लीग नून की पोलिंग एजेंट मुल्तान से सुबह 6 बजे खानेवाल पहुंची, कहती हैं आज भी शेर ही धाड़ेगा। प्रेसिडेंट टू वुमेन्स विंग की हम मुल्तान से यहाँ 5 बजे बड़े जोश और जज्बे से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज पोलिंग स्टेशन पे इंशाल्लाह खानेवाल मुस्लिम लीग का गढ़ है और नून लीग की इंशाल्लाह जीत होगी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सपोर्टर्स खवातीन का कहना था कि इस बार बल्ला घूमेगा। जितने भी हमारे साथ आए हुए हैं पोलिंग एजेंट्स वगैरह, उन सबका जज्बा जो है वो देखने के काबिल है और सब लोग बहुत इस टाइम जोशो खरोश में हैं और इंशाअल्लाह ताला और दुआएं भी साथ ही हैं हमारी अपनी पार्टी के लिए कि हम इंशाअल्लाह आए हैं तो जिस जज्बे के साथ उसी तरह उसी जज्बे को लेके हम जीत के ही जाएंगे। खवातीन के लिए 60 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। एक पोलिंग स्टेशन पे खवातीन का कहना था कि आज तीर निशाने पर लगेगा। कोई TLP की जीत का नारा भी लगाता नजर आया। कैमरा टीम के हमरा अलिशबा आसिफ। भी आपको बताते चलें कि शहरियों लिए के मसाइल हल ना हो सके, सियाल रोड से अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, इस मुताबिक भी आपको बताएंगे। लेकिन अहम खबर इस वक्त ये है कि जनूबी पंजाब में धुंध ने डेरे डाल दिए हैं। मोटरवे M5 के मुतादिद एरियाज में धुंध का राज बरकरार है और चेक में हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। बेड 25 के तमाम इंटरचेंज को बंद कर दिया गया है। ज़ाहिर पीरवाला में भी धुंध के बाद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस की गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत सामने आ रही हैं, जबकि किसी भी एमरजेंसी की सूरत में हेल्पलाइन 130 से भी राबता कर सकते हैं शहरी। अपडेट करेंगे आपको कि जनूबी पंजाब में धुंध ने डेरे डाल लिए हैं। मोटरवे M5 के मुतादिद एरियाज में धुंध का राज है। उच्च शरीफ में हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। बेड 25 के तमाम इंटरचेंज को बंद कर दिया गया है। ज़ाहिर पीरवाला में भी धुंध के बाद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस की गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत भी सामने आई है, जबकि शहरी सफ़र करने से पहले हेल्पलाइन 130 से भी राबता कर सकते हैं। शहरी ओलिया के मसाइल हल ना हो सके, सियाल रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। कारोबार मुतासिर होने लगा है, जबकि हादसा भी बढ़ चुके। मुल्तान शहर की अहम सड़क सियाल रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। टूटी सड़क के बाइस हादसा बढ़ गए। ये जनाब सड़क टूटी पई है, आज तो 6 महीने को ज्यादा ठीक है। मरीज वगैरह इतने लंघने छोड़े बड़े तकलीफ ना लेने पे। ताजिरों का कहना था कि इस सड़क पर अक्सर ट्रैफिक जाम रहती है, जिसकी वजह से कारोबार मुतासिर हो रहा है। हमें भी मसला होता है और जो मुसाफिर लोग हैं उनका भी मसला होता है। यहाँ से बोर्ड गेट का रास्ता है, वहाँ से मरीज आते हैं तो उनको बहुत तकलीफ होती है मरीजों को यहाँ से गुजरने के लिए। ताजिरों का मजीद कहना था कि अक्सर औकात एम्बुलेंस भी ट्रैफिक जाम में फंस जाती है। आला हुकाम सड़क को असर नो तामीर करवाएं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। नाजरीन, सब्जी मंडी मसाइल का गढ़ बन चुकी है। कहीं पानी की अदम दस्तियाबी तो कहीं सफाई के नाक़िस इंतजाम हैं, कहीं सीवरेज के मसाइल हैं तो कहीं सब्जियां कवर करने के लिए शेड नहीं है। मकामी ज़मींदारों और किसानों का प्याज खुले आसमान तले ख़राब होने लगा है, जबकि आरती कहते हैं हुकूमत शेड मुहैया करे और मसाइल हल करे।
सब्जी मंडी में सब्जी और फ्रूट खुले आसमान तले खराब होने लगे। नमी, बारिश और धूप की वजह से सब्जियां खराब हो जाती हैं। शेड न होने की वजह से किसानों, जमींदारों और आढ़तियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। सब्जियों को कवर करने के लिए कोई शेड नहीं बनाया गया। ओपन शेड है, यहाँ प्याज पड़ा हुआ है, खुले मैदान में पड़ा हुआ है। जब बारिश आती है तो हमारा माल खराब हो जाता है, जिम्मेदार का माल खराब हो जाता है। ऐसे ज़्यादा धूप पड़ती है तो तब भी ये खराब हो जाता है। हमारी हुकूमत से अपील है, वज़ीर-ए-आला से अपील है कि जल्द हमें यहाँ शेड मुहैया किया जाए। सब्जी मंडी के ताजिर और आड़ती कहते हैं सब्जी मंडी में आए रोज पानी के भी मसाइल रहते हैं। हुकूमत से दरख्वास्त है कि शेड मुहैया करें और सब्जी मंडी के तमाम मसाइल खत्म करें। हमारी वज़ीर-ए-आला से अपील है कि फौरी तौर पे सब्जी मंडी, ये जुनूबी पंजाब की मुल्तान सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन ये बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं है। हमसे मार्केट फीस वसूल कर ली जाती है लाखों रुपए माहों से, लेकिन कोई सहूलियात मौजूद नहीं है। मंडी में पानी नहीं है, बिजली नहीं है। सब्जी मंडी के मसाइल हैं कि खत्म होने का नाम नहीं लेते हैं। ताजिर और आड़तियों ने हुकूमत से सहूलियात पैदा करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ सुहेब गुरमानी, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान में वर्कर्स वेलफेयर स्कूलों के असातिज़ा सड़कों पर आ चुके हैं। मुतालबात के हक में तीसरे रोज भी तालीमी बायकॉट। कहते हैं मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी। रहीम यार खान में पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड एम्प्लॉयज यूनियन का मुतालबात के हक में एहतजाज जारी। तीसरे रोज भी तालीमी बाइकाट किया गया। मुजाहिरीन के मुतालबात के हक में नारेबाजी। असातिज़ा का कहना था कि हाउस सेलिंग में 44% इजाफे पर अमल दरामद न हुआ और न ही टाइम स्केल दिया गया। आज पता नहीं कितने अरसे बाद दोबारा से इंतजार कर करके धरना देने पर मजबूर हुए हैं, जिनमें नंबर 1 पेंशन है, उसमें मेडिकल विद पे है, मेडिकल की अदायगी है जो इतने अरसे से रुकी हुई है। हमारे और ऐसे बहुत से छोटे मोटे मसाइल हैं जिनकी वजह से बार बार ये कहा जाता है कि आप धरना बंद कर दो, हम आपके सारे मसाइल को समझेंगे। मुजाहिरीन का कहना था कि 25% डिस्पैरिटी अलाउंस की मंजूरी दी जाए और मेडिकल अलाउंस को तनख्वाहों का हिस्सा बनाया जाए। जो 25% डिस्पैरिटी अलाउंस है ये मार्च से अप्रूव हो चुका है, सब डिपार्टमेंट्स को ये मिल रहा है, लेकिन देना नहीं है तो सिर्फ टीचर को नहीं देना। 44% अलाउंस है, सब डिपार्टमेंट्स में ये मिल रहा है, लेकिन देना नहीं है ना, सिर्फ टीचर को नहीं देना। आज हर पढ़ा लिखा जवान यही चाहता है कि मैं PMS करूं, CSS करूं। उसकी रीजन यही है, वो देख चुका है सोसाइटी में कि टीचर को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। मुजाहिरीन का कहना था कि हाउसिंग स्कीम या प्लाट्स दिए जाएं। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। उधर मुल्तान में यंग पाकिस्तानीज ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम सानह आर्मी पब्लिक स्कूल और सानह मशरक़ी पाकिस्तान की याद में सेमिनार का इनेकाद किया गया। तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की, मिली नक़बे भी पढ़े गए। सानेहा APS के शोहदा हम तुम्हें नहीं भूले। गवर्नमेंट इकबाल सेकेंडरी स्कूल में सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा और सानेहा मशरक़ी पाकिस्तान की याद में तकरीब हुई। वतन अजीज की मोहब्बत में मिली नग़मे भी पढ़े गए। तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सानिया सकूते ढाका भी आज के दिन ही हुआ था और ये जो हम सानिया पेशावर यानी आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों की मग़फ़िरत के लिए ये दिन जो है आज पायलट सेकेंडरी स्कूल में मनाया जा रहा है। मुकर्ररीन का कहना था कि आर्मी पब्लिक स्कूल के सानहे को कभी नहीं भुलाया जा सकता। आज भी इस सानहे को याद करके आंखें नम हो जाती हैं। तो मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया। दूसरा ये APS सानहा जो था, जो नामुरादों ने हमारे बच्चों को शहीद कर दिया, उनकी गर्दनें कलम कर दी। शुरका का कहना था कि पाक फौज ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया। कैमरामैन हारून के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान के निशात पब्लिक स्कूल में तकरीब का इनेकाद किया गया। सानह आर्मी पब्लिक स्कूल के शहदा को खराज तहसीन पेश किया गया। शहदा की याद में शामें भी रोशन की गई हैं। दुआई तकरीब में तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। आर्मी पब्लिक स्कूल 16 दिसंबर का दिन कौन भूल पाएगा, जब बच्चों को खून से नहला दिया गया। आज के दिन जहां पूरा पाकिस्तान अश्कबार है, वहां स्कूल के बच्चे भी गमज़दा हैं। निशात पब्लिक स्कूल में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों की याद में शमें रोशन की गईं। दुआया तकरीब में तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। टीचर्स का कहना था कि आज का दिन सोगवार है, बच्चों को दहशतगर्दी से निमटने की तरगीब देंगे। हम सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की पुरजोर मजम्मत करते हैं। उस सिलसिले में हम आज इकट्ठे हुए हैं। हमने दुआ भी की है उन शहीदों के लिए, उन तमाम शहदा के लिए
हमने शम्मा रोशन की है, फूल पेश किए हैं। दुआया तकरीब में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के शहदा की याद को ताज़ा किया गया। तलबा दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए पुरअज़म दिखाई दिए। शहदा पब्लिक स्कूल जो दहशतगर्दी उन्हें मारा गया, हम पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और इस अल्लाह हमें इस दहशतगर्दी से महफूज फरमाए। आज ब्लैक डे है और आज बहुत से बच्चों को शहीद किया गया था निशम आर्मी पब्लिक स्कूल में। हम सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल की परजोर मजम्मत करेंगे। हम पढ़कर दहशत का मुकाबला करेंगे। 16 दिसंबर के दर्दनाक सानिया को याद करके बच्चा बच्चा सोगवार था। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। मियांवाली में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी बारे अहम इजलास पर डीपीओ इस्माइल रहमान खाड़क, उलमाए कराम और मसीही बरादरी के नुमाइंदों ने शिरकत की। क्रिसमस के हवाले से इंतजामात का जायजा भी लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली खुर्रम शहजाद की ज़ेर सदारत बैनुल मज़ाहिब हम आंगी बारे अहम इजलास हुआ। डीपीओ इस्माइल रहमान खाड़क, उलमाए कराम और मसीही बिरादरी के नुमाइंदगान शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि क्रिसमस के हवाले से तमाम तार इंतजामात मुकम्मल है। सिक्योरिटी के हमारे तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। इस हवाले से सिक्योरिटी ऑडिट भी किया जा रहा है। तमाम चर्चेज़ के विज़िट भी किए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ पे लूप होल्स हैं आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनको रेक्टिफाई किया जा रहा है। चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल रहमान खाड़ा का कहना था कि क्रिसमस पर सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे। जिला भर के 7 चर्चों और क्रिश्चियन कब्रिस्तानों में पुलिस एहलकार तैनात होंगे। मियांवाली में हमारे 7 चर्चेज हैं और उस पर एलीट टीम्स भी लगी हैं और सिक्योरिटी ऑडिट भी हो रहा है, जैसे खुर्रम साहब ने कहा है, और ड्यूटी हम बीफ अप कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो पार्क्स हैं, क्योंकि क्रिसमस के बाद पार्क्स में लोग जाते हैं, हमारे ग्रेव यार्ड्स हैं क्रिश्चियंस के, और जो जहाँ जहाँ भी रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ हैं उनकी भी सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। क्रिश्चियन बिरादरी के नुमाइंदों ने क्रिसमस के हवाले से इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। महकमा सुई गैस ने कैप्टिव पावर सेक्टर को गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी। एक्सपोर्ट और जनरल इंडस्ट्री के शोबों को गैस की बिला तातुल फराहमी जारी रहेगी। गैस मुअत्तली का फैसला घरेलू सार्फिन को बिला तातुल गैस की फराहमी जारी रखने के लिए किया गया है। लोड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत गैस की फराहमी मुअत्तल की गई है। इंडस्ट्री से सनती ज़रूरियात के लिए बिजली पर इन्हिसार करने की दरख्वास्त की गई है। एलपीजी एसोसिएशन ने जनूबी पंजाब में शटर डाउन हड़ताल की कॉल वापस ले ली। जनूबी पंजाब में एलपीजी के कारोबार में अब पुलिस के बेजा मुदाखलत नहीं होगी। पुलिस और सिविल डिफेंस के पास कोई इख्तियारत नहीं। भत्ता लेने वाले सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जनूबी पंजाब में एलपीजी के कारोबार में अब एसी और डीसी के अलावा किसी को मुदाखलत करने की हरगिज इजाज़त नहीं होगी। डीआईजी पुलिस इस्टेब्लिशमेंट जनूबी पंजाब करमज रहमान ने एलपीजी एसोसिएशन के चेयरमैन से मुलाकात की है। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में बैनुल-अक़वामी फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज़ मुकामी और बैनुल-अक़वामी साइंसदानों ने तहक़ीक़ी मक़ाले पेश किए हैं। यूनिवर्सिटी में बैनुल-अक़वामी फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। आखिरी रोज शिंकियांग यूनिवर्सिटी चीन के डॉक्टर जेसन ने केमिकल साइंस में नए ट्रेंड्स को बयान किया। श्रीलंका से प्रोफेसर अरिंगा विजय सिंगा ने इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल इमेजिंग, और पावी इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया से डॉक्टर विजय राजा लक्ष्मी ने केमिकल न्यूट्रलाइजर्स में सेंसर्स के जदीद इस्तेमाल को बयान किया। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मोहम्मद बिलाल ताहिर ने जदीद टेक्नोलॉजी और मौसमियाती तब्दीली पर मकाला पेश किया। असातिज़ा ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को मुस्तकबिल के लिए माविन करार दिया। ये जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इसका बेसिक वैसे ये होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो है जो एक एक्सपोजर करना होता है इंटरनेशनल जो है लेवल पे जितनी भी रिसर्च हो रही है। तो जब तक ये स्टूडेंट्स जो है इंटरनेशनल रिसर्च को जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो उस वक्त तक जो है वो अच्छा जो है वो रिसर्च जो है परफॉर्म नहीं कर सकते इन फ्यूचर में। मुझे बहुत खुशी है कि ये 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी की, वो बड़ी मतलब एक कामयाबी से अख्तिताम को पहुँची। तलबा का कहना था कि कॉन्फ्रेंस से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। एज ए स्टूडेंट ये बहुत अच्छा मौका था हमारे लिए सीखने के लिए। बहुत सारी रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ ने हमें ज्वाइन किया, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से जो हैं वो रिसर्चर्स ने हमें ज्वाइन किया। उनके जो एक्सपीरियंस था, उनके जो आइडियाज़ थे, उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। हमें काफ़ी कुछ जो है वो सीखने को मिला। और बेसिकली इस 3 रोज़ा जो हमारी कॉन्फ्रेंस है उसमें बीइंग स्टूडेंट हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हुआ है। हमें बहुत सारी रिसर्च रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ से मिलना हुआ है।
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से तलबा और असातिज़ा के दूसरी यूनिवर्सिटीज के साथ रवाबित भी बेहतर हुए, जिससे तहकीकात की नई राहें खुलेंगी। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान।